नमस्कार साथियों, हमारे देश में न्याय की ज्योति जीवित है। हम ऐसा क्यों मानते हैं, इस पर और जानकारी मेरे वरिष्ठ साथी सांसद और हमारे देश के जाने माने वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी जी देंगे, आपको संबोधित करेंगे। डॉक्टर सिंघवी। धन्यवाद जयराम जी। नमस्कार दोस्तों। एज यूजुअल इंग्लिश और हिंदी दोनों में करेंगे ब्रीफली। लेट मी स्टार्ट बाय टेलिंग यू व्हाट दिस पीसी इज नॉट अबाउट। दिस पीसी इज नॉट टू gloat, to exult, or to be self-congratulatory on this great victory. Instead, according to me, the purpose of this PC on behalf of the Congress Party is to remind ourselves, first and foremost, that when personal liberty is an issue, citizens' liberty is an issue, the court is our ultimate bedrock of hope. Second, a lesson for all, including us. Be you ever so high, the law is above you. Third, to rededicate ourselves that if we have this faith and commitment to law, the law will protect us. It will not allow injustice to prevail. And I also want to make it clear that this is no comment on a sub judice case. The case is over, judgment has come. But I will still be, as I said, not here to exult or gloat or be self-congratulatory. I must remind you, for those of you who have forgotten perhaps, that this was a journey of steadfastness and continued faith in getting justice, which we thought is our due. Why? Because this journey has had, in a very short period of time, multiple stages, fora, places, positions. From the original magistrates' court, where the state went, in Assam, in Kamrup, to the transit bail court in the High Court of Telangana, to the Supreme Court, back to the High Court of Guwahati, and then finally to the Supreme Court, which has today delivered judgment. In this entire process, our unwavering faith and commitment in the judicial process can be seen. That of the litigant concerned, that of the Congress Party, and that of every other stakeholder. This case also reminds us that when reputational damage is an issue, the beginning of this case, the heart of this case is alleged reputational damage. So it reminds us that when that is the issue, arrest should not be the first, but the last resort. And a last resort on what test? Can you achieve the objects of proper investigation without arrest? Is arrest the only way I can investigate his alleged defamatory comment? Is arrest the only way because this case is bristling with flight risk, that if I do not arrest him and custodially interrogate him, he will flee? Arrest is the only way because I will not be able to summon him and sit with him and interrogate him without arrest. Arrest is the only way because he will tamper with documents or with witnesses. Lawyers call it the triple test. Now, on the face of it, when this test is not satisfied, let us assume there was an error, let us assume the right is this or the right is that. Irrespective of that, the press conference, which is alleged to have caused reputational damage, had everything in the public sphere, transparently. Documents were also transparently demonstrated or used. Well, in that case, clearly, if the triple test is satisfied in favor of the accused, then
the only object of arrest, of custodial interrogation, especially in a political adversarial context, can be humiliation, harassment, scoring a political point. And that is the message both in the text and the spirit of this judgment. There is also a larger issue. And let me preface it by saying, I am nobody, and I mean it, to advise the Honorable CM of Assam. He may well head to a victory 2 days later, he may not. These are the vicissitudes of democracy and of politics. But I would, with folded hands, request the Honorable CM, presently perhaps a caretaker CM for 2 more days till the verdict comes out, that irrespective of the outcome on Monday, does he not wish that he should genuinely reconsider his stand as reflected in the judgment, quoted in the judgment? The statements made by him in public domain and quoted extensively by the Supreme Court over almost 3 pages in para 22. Most are unrepeatable, unprintable, and unstatable. But you can all read it now. Even the Supreme Court has not reproduced what my petition reproduced. So I, with humility and without any condescension, would say that this truly debases our democracy. It devalues. It makes us no different from the constitutional wrecks and ruins which we find in our neighborhood. And I think unparliamentary language is the mildest word in the dictionary. But without asking him to reconsider or apologize, and I said, I'm nobody. If he were to do it and express regrets genuinely, he would actually be elevating himself. But the Supreme Court has categorically underlined those observations, only partially quoted. Those of you interested should see the real full text in the petition file, which are also in public domain. And the Supreme Court has underlined, this is important in case you missed it, that the Solicitor General neither justified nor supported those statements. The other brief points to make before I address you in Hindi briefly is that against the entire might of this state and against the absolute Rambo statements of the Honorable Chief Executive of that state, you must not forget that the state, the investigating officer, went with a non-bailable warrant, virtually amounting to an arrest warrant, to the lowest level in the judiciary, the magistrate in Kamrup. On 7th of April 2026, much before all this happened, 2 days after the press conference, the magistrate in Kamrup, the lowest level of the judiciary, gave a reasoned order recording every allegation and contention of the state government, gave reasons as to why the requirement and the claim to arrest is speculative, without foundation and fanciful. That is what we must also cherish in our judicial system. The other issue which you might want to note is that the judgment which was challenged by us in the Supreme Court, the last judgment of Guwahati High Court, added sections which were not in the complaint, not in the FIR, not raised by the complainant. They found their place in a judicial order which the Supreme Court has frowned upon in the judgment which has come today. Another thing you must note is that right for the last 30-40 years, and I don't want to bore you with technicality, the Supreme Court in a famous anticipatory bail case called Sibia said that ultimately when you look at a man who is approaching in anticipation for bail, pre-arrest, you must not forget the presumption of innocence. If there is a presumption of innocence, that validates anticipatory bail more than anything else. That is reiterated in today's judgment. Another facet, every section in a hurry which could be thought of was thrown against this accused, Mr. Khera. We gave a chart pointing out that out of 10 or 11 sections, 9 were bailable offences. For those of you who don't understand, bailable offence means
that you don't need to go to court for bail. Even the police has the discretion to grant you bail. They are considered lesser punishments and therefore bailable offences. 9 sections were pressed into service for that, and we gave a full analysis of that. The court has also noted that in a political campaign, in the heat of the moment, these were the remarks alleged to have been made or allegedly wrongful. I am not quoting the court for this, but I would submit that unless in a liberal democracy, or in any democracy for that matter, genuine democracy, a latitude is given, an accommodation is given to political adversaries, you would imperil and completely, in fact, reduce to vanishing point the fundamental right of free speech. In the end, we, the Congress Party, I personally, my colleagues, hail the Supreme Court verdict. More than anything else, we hail its promptness. But along with that, I must recognize the number of junior members of the legal team who assisted me, the number of other senior members of the Congress team who came to give moral support. And remember, they had to work at breakneck speed to move 5 fora within days and hours and not in weeks. So I would want to not forget that spirit and dedication. And we also, of course, welcome Mr. Khera back. दोस्तों, मैं शुरुआत में इतना आपको अर्ज कर दूं कि ये याद रखना आवश्यक है कि हम क्या नहीं कर रहे हैं आज हम आत्म प्रशंसा के लिए या एक बहुत दावा करने के लिए कि हम जीत गए हैं और तुम लोग गलत हो, उसके लिए नहीं आए हैं। सिर्फ हम कुछ सिद्धांतों को आपके सामने उजागर करने के लिए आए हैं। ये बताने के लिए नहीं आए कि हम विजयी हैं और आप पराजय हुए हो। ये समय है 3-4 मूल सिद्धांतों को याद रखने के लिए। पहला, कि जब जब स्वतंत्रता, लिबर्टी का मुद्दा आता है, तो सबसे बड़ा जो एक संरक्षक है जिसकी तरफ हम देखते हैं, नागरिक देख सकता है, जो सिर्फ वही चीज है नागरिक के लिए, वो है हमारा न्यायिक सिस्टम, हमारे न्यायालय, हमारे कानून। हमको ये याद रखना है, जो सैकड़ों बार कई 100 साल पहले से कहा गया है कानून में, कितने भी ऊंचे हो, कहीं भी हो, कभी ये ना भूलो कि आप कानून के नीचे हो। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज अबव यू। ये सिद्धांत बार बार न्यायालय शासकों को याद दिलाता है। तीसरा, जब जब आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करता है। आपने एक भावना, एक फेथ और कमिटमेंट दिखाया कोर्ट कचहरी न्यायालय के विषय में, और अंततोगत्वा अन्याय से आप बचे। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इसमें कोई सब जुडिस रूल का मुद्दा नहीं है। ये निर्णय आ गया है, हम स्वतंत्रता से बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सीमाओं के अंदर जानबूझ के बोल रहा हूं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं दर्शाना चाहता हूं कि मैं कोई दावे कर रहा हूं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस केस की यात्रा बहुत अल्प समय में कई अलग अलग जगहों से निकली है, बल्कि दौड़ी है, क्योंकि बहुत कम समय में ये काम होना पड़ा था। एक कामरूप के मैजिस्ट्रेट में ये कहानी शुरू हुई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख के बाद। उसके बाद ये तेलंगाना के हाई कोर्ट गई थी, फिर उच्चतम न्यायालय आई, वहां से गुवाहाटी हाई कोर्ट भेजा गया, और आज अंततोगत्वा उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया। इस पूरे प्रक्रिया में, न्यायिक प्रक्रिया में, हमने पूर्ण रूपेण आस्था दिखाई, विश्वास दिखाया, और हमें पूरी आशा और विश्वास था कि न्याय और सच्चाई की जीत होगी। ये हमको जो सबसे महत्वपूर्ण कानूनी, संवैधानिक, गणतांत्रिक सिद्धांत याद दिलाता है, वो एक है कि जब कोई मानहानि का आरोप हो, और अभी हम आरोप के क्षेत्र में हैं, तो आपको एक प्रश्न सबसे पहले पूछना चाहिए, क्या गिरफ्तारी के बिना तहकीकात नहीं हो सकती? अगर गिरफ्तारी के बिना तहकीकात असंभव है, तो वो बहुत 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 रेयर केसेस में आप गिरफ्तारी कर सकते हैं। लेकिन जिसको हम त्रिकोण वाला टेस्ट कहते हैं, ट्रिपल टेस्ट कहते हैं, भगोड़ा होने का कोई सवाल नहीं है, जाना माना व्यक्ति है,
समाज में, घर में, राजनीति में उसकी जान में उसकी एक पहचान है। वो अंडरटेकिंग दे सकता है कि वो हर हफ्ते इस बार आएगा तहकीकात के लिए, जवाब देने के लिए, पूछताछ के लिए। आजकल विदेश भागने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि पासपोर्ट अवेलेबल होता है जब्त होने के लिए। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय है, इसमें सब कुछ पारदर्शी रूप से सामने रखा गया है। कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई ऐसे साक्ष्य नहीं है जिनसे भय हो सकता है कि जिनसे कोई इंटरफेयर किया जाए। तो ऐसे संदर्भ में प्रश्न उठता है, क्या उद्देश्य है गिरफ्तारी के भय से 75 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना या 60 लोगों को निजामुद्दीन भेज देना, जैसे कोई आतंकवादी खड़ा है वहां पर? उसका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि आप किसी को ह्यूमिलिएट करना चाहते हैं, किसी को बेशर्मी से हैरेस करना चाहते हैं। और ये कानून संतुलित रूप से अनुमति नहीं देता है, क्योंकि आपकी तहकीकात और गिरफ्तार के बीच में एक संतुलित इक्वेशन होना चाहिए। एक और व्यापक मुद्दा है, और मैं विनम्रता से कहूंगा, मैं कोई भी नहीं हूं वैसे सुझाव देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री वापस बन सकते हैं 4 तारीख को, वापस नहीं बने वो मुद्दा है ही नहीं। चाहे जीते वो हारे, उनको ये सोचना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि जो 3 पन्नों में उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ 22 में कोट किया है उनको, माननीय मुख्यमंत्री को, और कई चीजें कोट नहीं की हैं जो मेरी याचिका में है, जो न मैं बोल सकता हूं न कोट कर सकती है उच्चतम न्यायालय। तो मैं एक बड़ा विनम्रता से प्रश्न पूछूंगा कि क्या ये शोभा देता है किसी शपथ ग्रहण संवैधानिक पदासीन व्यक्ति को? और ये चुनाव की बात नहीं है, आप जीतें कल, आप हारें कल। ये बात है कि क्या फर्क है आपके बीच में, हमारे बीच में, हमारे गौरवशाली गणतंत्र के बीच में और हमारे पड़ोसियों के गणतंत्र के बीच में, जहां ये सब चीजें होती हैं। और इसलिए मैं समझता हूं कि अगर वो हमारे सुझाव से नहीं, स्वतः इस बात पर पुनर्विचार करें और कम से कम गंभीर रूप से खेद प्रकट करें, मैं माफी की बात नहीं करता, तो वो खुद अपने आप को ऊंचा लेंगे। हमको कोई उससे खास सरोकार नहीं है, लेकिन दुख इस बात का है कि इस प्रकार की शब्दावली, इस प्रकार के आरोप, इस प्रकार की धमकियां, इस प्रकार के संदर्भ और इडियम्स का इस्तेमाल किया गया है जो शर्मनाक हैं, और किसी भी गणतंत्र में, किसी भी चुनाव अभियान में उनकी जगह नहीं है। अंत में मैं 2-3 पहलू और बोल के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक पहलू रोचक है, महत्वपूर्ण है। हमारी न्यायिक पूरे सिस्टम में जो सबसे निचला होता है, मैजिस्ट्रेट होता है। तो शायद आपको पता नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 5 तारीख वाली के 2 दिन बाद 7 तारीख को सरकार ने, प्रदेश ने अपने पूरे जबरदस्त फोर्स के साथ एक NBW, जिसको कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट की याचिका डाली, जो एक प्रकार से अरेस्ट की याचिका होती है। उसको बहुत व्यापक रूप से सुना, 5-7 पन्नों के कारणों के साथ उसको खारिज किया, और उस न्यूनतम श्रेणी के जज ने कहा कि गिरफ्तारी की मांग इन सब तथ्यों को मद्देनजर रखते हुए लगती है कि फैंसीफुल है, स्पेकुलेटिव है, अनसब्सटेंशिएटेड, यानी उसमें कोई मजबूती नहीं है, वो एक दिमाग की सोच है, उसमें सत्य या तथ्य नहीं है। 1-2 और पहलू जिस निर्णय के विरुद्ध हम उच्चतम न्यायालय में आए, जो उच्चतम न्यायालय ने आज निर्णित किया है, उसमें कई पैराज हैं जिसमें कि ऐसे प्रावधानों का जिक्र है जो न कंप्लेनेंट ने, न याचक ने, न इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने, न FIR ने, कंप्लेंट ने कहा है। एक उदाहरण है अनुच्छेद 339 का। आरोप नहीं लगा है, लेकिन उच्च न्यायालय में उसका जिक्र आ गया है। इसकी बात उच्चतम न्यायालय ने की है। दूसरी बात जो उच्चतम न्यायालय ने की है, वो कहा है कि हम भूल जाते हैं कि एंटिसिपेटरी बेल यानी अरेस्ट की पहली वाली बेल में वो मूल सिद्धांत जो है हमारे कानून का सैकड़ों वर्षों से, कि आपको जब तक आप साबित नहीं होते दोषी, आपको दोषी नहीं मान सकते, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, वही एक मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर एंटिसिपेटरी बेल आधारित है। उसको नहीं भूला जा सकता। तीसरा पहलू कि हर प्रकार के प्रावधानों को डाल दिया गया
इसको मानहानि से एक अलग केस बनाने के लिए 9 प्रावधानों का इस्तेमाल किया और 9 के 9 हमने सिद्ध किया बेलेबल हैं। एक शेड्यूल होता है कानून में जिसमें लिखा आता है बेलेबल। बेलेबल का मतलब होता है कि इतना निचले दर्जे का उसमें पनिशमेंट है कि आप ऊपर जाने की आवश्यकता नहीं कोर्ट कचहरी में। पुलिस भी बेल देने का अधिकार क्षेत्र रखती है। यद्यपि हमें कोई आशा और विश्वास नहीं है कि असम पुलिस के बारे में जो कहा गया है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, उसके बाद असम पुलिस कभी सोचेगी भी अपने आप बेल देने की। तो 11 में से 9 ऐसे प्रावधान हैं और फिर भी अरेस्ट के लिए लोग भाग रहे हैं इस व्यक्ति के पीछे। और अंतिम इसमें पक्ष जो है, पहलू है, वो ये है कि हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्र निर्भीक जो एक वाणी का मूल संवैधानिक अधिकार है हमारे अनुच्छेद 19(1)(a) में 19(1)(a) में, अगर उसको आपको उजागर रखना है तो राजनीतिक कैंपेन के दौरान उसकी गर्मी के और गर्माहट के दौरान एक राजनीतिक वक्तव्य के आधार पर इतना बड़ा उसका एक इशू बनाना, पुलिस को भेजना और गिरफ्तारी पे इंसिस्ट करना, मैं समझता हूं कि अगर कोर्ट कचहरी इसमें नहीं हस्तक्षेप करेंगे तो 19(1)(a) एक प्रकार से खत्म हो जाएगा। अंत में मैं इस निर्णय का पूरे रूप से एक समर्थन करते हुए बधाई देता हूं समाज को, देश को, कि उच्चतम न्यायालय ने सही समय में इतनी जल्दी 2 दिन में ये निर्णय दिया, क्योंकि इसमें लिबर्टी के मुद्दे थे। मैं साथ साथ अपने उस हर जूनियर व्यक्ति को लीगल टीम में जिन्होंने इतना काम किया, क्योंकि 5 जगहों पे 2-3 हफ्ते में भाग दौड़ करके फाइल करना बनाना, उस सब के लिए और मुझे असिस्टेंस दी, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस पार्टी और मैं और मेरे कॉलीग और सभी लोग इस निर्णय का बहुत पूरी तरह से व्यापक रूप से स्वागत करते हैं। और अब हम स्वागत बाद में करेंगे खेरा जी का भी। शुक्रिया सिंघवी जी। जैसा कि अभी सिंघवी जी ने कहा है, हम इस नजरिए को से नहीं देखते हैं कि किस व्यक्ति की जीत हुई है और किस व्यक्ति की हार हुई है, पर आज जीत हुई है संविधान की। रोज संविधान खतरे में है, रोज मोदी सरकार की ओर से इस संविधान पर आक्रमण होता है, पर आज खुशी का दिन है कि संविधान जीता है, संवैधानिक मूल्य जीते हैं, संवैधानिक प्रावधान जीते हैं। और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो है उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि संविधान की जीत हुई है। हमला तो जारी रहेगा, आक्रमण जारी रहेगा, प्रयास करते रहेंगे, पर आज का निर्णय जनता को विश्वास दिलाता है कि संविधान रक्षक अभी भी जीवित हैं। लोग खड़े होकर संविधान की रक्षा करने के लिए तैयार हैं और इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट को भी बधाई देते हैं।